السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شادیوں کی شاپنگ ایک بہت اہم مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے شادی کے بندھن میں بننے والے دو کنبوں کو دعوت دی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ نے شکر ہے۔ آپ بچی کے باپ ہیں جی؟ جی جی بیٹی میری جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آصفہ نے ہمیشہ مجھے کہا کہ ابو میں تو سادگی سے ہی شادی کرنی چاہتی ہوں۔ اصل میں جنید صاحب بچیاں خود بھی فرمائشیں کرتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر میری بچی نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی۔ یہ شرازی صاحب ہے جی، انہوں نے ہمارا ان سے رشتہ کروایا تھا۔ یہ جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے اینک والا، اچھا یہ دولہا ہے۔ اور اچھا، تو آپ کا ہونے والا داماد ہے؟ جی 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 جی، آپ نے کیا سمجھا کو ہسپتال داخل کروانے ہم نے اسے؟ کیا کرنے ہو والے، شادی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، یہ دولہے کے والد ہیں جی۔ ہے جی ان کا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ یہ جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے بڑے بھائی ہیں جی جی، اور ہم خاندانی لوگ ہیں کیوں بھائی؟ جی جی، اور خاندان سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اور خاندانی یہ جنید صاحب اتنے کو ہیں کہ میں جس دن ڈیٹ طے ہوئی ہے اس سے اگلے دن یہ شرازی صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے مجھے کہا ہے جی کہ وہ دولہا والوں کا ایک میسج آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا جی حکم کریں۔ کہتے ہیں جی جناب وہ جو رائل شادی ہال ہے نا وہ بک کروائیے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کے علاوہ کوئی شادی ہال نہ بک کروائیں۔ وہ جنید صاحب اب رائل شادی ہال ایک تو میرے گھر سے بہت زیادہ دور ہے، دوسرا وہ مہنگا بہت ہے جی۔ رائل جو ہوا جی وہ بڑا مہنگا ہے جنید صاحب، میں افورڈ نہیں کرتا۔ بھائی شادی روز روز نہیں ہوتی بھائی، روز روز نہیں ہوتی شادی۔ وہ جی روز روز کے چکر میں اب ہم نے تو نہیں نا قرضے کے نیچے آ جانا جنید صاحب۔ میں اپنی بساط اوقات کے مطابق ڈیڈی ویسے بھی رویل شادی ہال کو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ ہاں ویسے بھی میری جو سہیلی ہے نا ان کی شادی بھی رویل شادی ہال میں ہوئی ہے، اور میری اپنی بھی خواہش ہے کہ چلیں میری بھی شادی رویل شادی ہال میں ہو۔ نہیں، آپ کی سہیلیاں ان کے والدین افورڈ کر سکتے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد اگر نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ اپنی اس شرط سے وڈرا کر جاؤ۔ نہیں جنید صاحب بچی ضد نہیں کرتی، اس نے مجھے کہا ہے پہلے بھی، جیسے ابھی بھی کہہ رہی میں نے کہا کہ میری وہ ادھر ہی ہونی چاہیے رویل میں۔ ہاں مگر یہ اس نے ضد نہیں کی۔ میں نے اسے سمجھایا بیٹا میں افورڈ نہیں کرتا۔ ہمارے گھر کے سامنے جنید صاحب گراؤنڈ ہے چھوٹی سی، تو ہم نے ادھر بندوبست کر لیا۔ میرا بڑا اچھا دوست ہے جی، ساتھ ہی ہمارے محلے میں رہتا ہے، ابراہیم، بہت اچھی وہ ہانڈی پکاتا ہے۔ کیا پہ کرنے ہو تساں؟ میں دینا کہ آکھے بڑے کھلے دل نے لوگ نے، جو تساں آکسو ہو سی ہن تساں آکھنے پے ہو کہ گراؤنڈ میں ٹینٹ لگ سن۔ گراؤنڈ ٹینٹ میں کون سا ایسا گراؤنڈ انڈیا میں تو نہیں ہے نا، ہمارے محلے میں گراؤنڈ ہے۔ تو جنید صاحب وہ مجھے اس کا کرایہ بھی نہیں پڑنا، سارے محلے دار کہتے ہیں کہ اشرف تم کرو ادھر چاہتی بچی کی۔ تو میں نے ادھر بندوبست بھی کر لیا ہوا ہے۔ آپ کو بتایا کہ جو کوک ہے پکائی کرتا ہے، جو بڑا اچھا اپنا پرا ہے، وہ ابراہیم کہتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں، اپنی ہماری بچی کا مسئلہ ہے۔ اب جنید صاحب جو ہمارے گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارا افورڈ جتنا بجٹ ہے، ہم جیسے لوگوں میں تو اسی طرح سارے مل کے تو کہتے ہیں بھائی ہم ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کرنا بھی یہی چاہیے، کرنا بھی یہی چاہیے۔ اب ہم اگر فرمائشیں پوری کرنی شروع کر دیں، اب رائل شادی ہال یار آپ لوگ کر لیجئے گا وہاں پہ ولیمہ، آپ کو شوق ہے تو اب مجھے نہ یہ گائیڈ کریں یا حکم صادر کریں کہ جی میں بھی اسی شادی ہال میں جاؤں۔ میرا جو بنتا ہے، جو میری جیب اجازت دیتی ہے میں وہاں کر رہا ہوں، آپ اپنی بچے کا جو ولیمے کی تقریب ہے وہ وہاں کر لینا۔ اشرف صاحب کی کرتے پے ہو؟ خیر نال کاکے دی برات دے نال 2 MP آ رہے نے، ایک MNA آ رہے نے، تے انہاں نوں تسی گراؤنڈ 'چ بٹھاؤ گے؟ وہ میرا مطلب ہے گراؤنڈ میں کون سا MNA MP یہ باسی ہو جاتا ہے؟ گراؤنڈ میں بھی انسان ہی کرتے ہیں نا جی تقریبات۔ انہاں دا آکھن نا مقصد اوتھے ہنیری چل گئی تے او تمبوہاں تلے آ جا سن نا۔ وہ نہیں آتے یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حد ہو گئی ہے۔ ہمارے محلے میں 36 شادیاں ہوتی ہیں، اسی گراؤنڈ میں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس زمن میں سب سے زیادہ جو اہم رول ہے نا وہ دلہا اور دلہن کو پلے کرنا چاہیے۔ وہ خود سادگی پہ اصرار کریں تو یہ معاملہ جو ہے یہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ کی کیا خواہش ہے جی؟ سر میری یہی خواہش ہے کہ بجٹ کم کر لیں اور رکھیں رویل میں۔ یہ دیکھا نا، ہر آپ کی بیٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ اسی جگہ پہ ہو، آپ کے بیٹے کی مان نہیں رہے آپ دونوں۔ نہیں جنید صاحب بچی کی خواہش ہے، ضد بھی ہے۔ نہیں ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے۔ بچی میری نے کہا ہے کہ ابا جی آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا، ویسے اگر آپ کر دیں تو
फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना बजट नहीं है, हमने सिर्फ रोटी तो नहीं पकानी, हमने बच्ची की सारी चीज़ें बनाई हैं माशाल्लाह। और देखिए फिर इन्होंने ये जो बैठे हुए हैं शरादी साहब, इन्होंने आके कहा जी कि आप दूल्हे की सारी चीज़ें जो हैं वो औरेगा माल से लीजिएगा। मैं उधर चला गया हूँ, मैंने सारी चीज़ें उधर से ली हैं। और मैंने कहा कोई बात नहीं हाला जुनैद साहब, मैंने अपने साले से, सीधी बात है, 2 लाख रुपया आधार लिया है, तो मैंने कहा चलो इनकी ख्वाहिश है उधर से चीज़ें ले लेते हैं। और जो इन्होंने बच्ची के लिए चीज़ें ली हैं सारी जुनैद साहब शालवी से ली हैं। और बल्कि जुनैद साहब 2 स्वेटर जो सर्दियों की वजह से इन्होंने साथ रखे हैं वरी में, आप यकीन मानेंगे लंडे के हैं। लंडे के स्वेटर तो आके बीच में रखे हुए। जुनैद साहब मैंने लंडे का काम किया 10 साल, मुझे पता, मैं स्वेटर सूंघ के बता देता हूँ लंडे का है आके। जाने दें अशरफ साहब, कौन से लंडे के, सारी शॉपिंग दुबई से हुई है, ये स्वेटर भी दुबई के हैं। बुर्ज अल खलीफा से टांगे हुए थे उन्होंने दोनों स्वेटर। जुनैद साहब ये जो दुबई कह रहे हैं ना, इनको कहीं दुबई छोड़े, कसम उठा के बताएं ये कभी कराची गए हैं? खुदा का नाम ले अशरफ साहब, खाते पीते लोग हैं, उनका घी का कारोबार है। और जुनैद साहब ये पकौड़ियों वाली दुकानों से पुराना घी लेके उसे रिफाइन करके बेचते हैं। भाईजान खाते पीते इसलिए मशहूर है कि सारा घी खुद खाते हैं, इसलिए खाते पीते हैं वो। हाँ, दुबई कहाँ से आ गया? फारिस आपने तो मुझे कहा था सारी शॉपिंग लंदन से की है। देखो ना जरा जुनैद साहब, बाप बेटे के मुल्क ही आपस में नहीं मिलते। वो लंदन का कह रहा है मेरी बेटी को, वो कह रहा है दुबई से आए हैं। अब ताए से पूछे, मेरा ख्याल है ये मलाइशिया से कह देंगे आए। अंकल आप भी जरा तमीज से बात करें, आपकी बेटी ने कहा था कि मेरे अब्बू जहेज में गाड़ी देंगे, तो कहाँ है वो गाड़ी शाड़ी? बेटा गाड़ी तुम्हें कैसे दे दे बेटे, तुम्हारी जैसी चीजें मोटरसाइकिल के कैरियर पे रस्सी से बांधी होती हैं। गाड़ी उन्होंने ले ली है, वो जो 2 हाथ से पकड़ के चलाते हो। आप देखें ना जुनैद साहब कैसी फजूल गुफ्तगू करता है ये लड़का खुद। उस दिन हमारे घर में बैठ के भी इसने कहा है कि जहेज में आपने गाड़ी देनी है। यार को खुदा का खौफ खाएं, हमने आपको नहीं था कहा कि हमको मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम तो माड़े लोग हैं। अपनी जेब के अपनी औकात के हिसाब से जो मैं दूंगा बच्ची को वो खुद दूंगा, आप क्यों ये बात करते? और ऊपर से जुनैद साहब हर चीज में बोल रहे हैं, हर चीज में बोल रहे हैं। जब हम बारात लेके आए, इस्तकबाल के लिए आप फूल पत्तियों का इंतजाम जरूर रखें, हार जो हैं वो मेरे सारे भाइयों को पहनाने चाहिए, ये दूल्हे के वाले साहब फरमा रहे हैं। तो यार आप क्यों इस तरह की फरमाइशें करते हैं? बड़ी ईद पे आप जैसी चीज को गले में हार डालते हैं, वो भी इसलिए कि साथ लोगों ने हिस्सा डाला होता है। वो भी इसलिए कि थोड़ी देर बाद जब सिरी अलग हो तो हार खुद ब खुद उतर जाते हैं। आप हम इस तरह की फजूल फरमाइशें करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं यार? गुस्सा चढ़ा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं अशरफ साहब? इस रिश्ते की खातिर मैंने अपना पूरा खानदान छोड़ा है। इसकी खाला की बेटी का रिश्ता छोड़ा, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन सिर्फ एक उंगली नहीं है। नहीं तो उंगली नहीं तो उसने क्या मुर्गियों को पोरे डालने थे? बोरे डालने वाली बात नहीं, मुझे पोटे वाली सेंगियां पसंद है, वो बना नहीं सकती। तो आप फिर बहू लाने के बजाय पोटे वाली सेवियां बनाने वाली मशीन ले लें। वो शर्म करें आप। यार रफड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 50000 ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। तुसाल कोल भी मैं 50000 बकाया लेना यार है। किस बात के तुमने 50-50 हजार लेने, मामला तुमने खराब कर दिया दोनों तरफ से। 50,000 किस चीज का आपको दे दे? 50,000 के इस तरह के 2 आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब हमारे फारस के लिए? आपको पता है फारस की एक खाला इसको गोविंदा कहती है, एक खाला इसको अनिल कपूर कहती है, बिल्कुल, और तीसरी खाला इसको अजय देवगन कहती है। यानी इसे कोई खाला भी मुसलमान नहीं समझती। और जिन 3 खालाओं का जिक्र कर रहे हैं, इसी जुर्म की पादाश में एक छत से गिर के मर गई, एक सैलाब में बह गई और एक को सांप ने काट लिया। देखें क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं मेरे फारस के लिए। इस फारस को मैंने मंतों से मांगा है। मंतों के बाद भी इतना ही मिला है। ये मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा है ना, इसीलिए बिगड़ा हुआ है और मुंह खोल खोल के खुद फरमाइशें कर रहा है। जुनैद साहब मैंने कोई फरमाइश नहीं की अब्बू से। अब्बू मुझे ये कह रहे थे कि 1 डिश होनी चाहिए खाने में। मैंने इतना जरूर इसरार किया कि अब्बू 6-7 डिशें तो होनी चाहिए ना। आखिर मेरी सहेली
सहेलियों ने आना है। आपने सहेलियों की वजह से 6-7 डिशों का नहीं कहा होगा, आपने अपने होने वाले ससुर को देख लिया होगा, इसकी वजह से कहा होगा। नहीं जुनैद साहब, फरमाइश बिल्कुल की है बच्ची ने, मगर आप यकीन माने कि जब ये लोग हमारे घर आए हैं ना पहली दफा, तो बच्ची ने दूल्हे को ताए को देख के वो फरमाइश अपनी वापस ले ली। अच्छा। इन्होंने कहा अबू कोई जरूरत नहीं 7-8 डिशों की, बस आप मीठे चौल ही बनवा ले, बड़े हैं इनके लिए। नो 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 नो, ये ज़हन में रखिएगा भाई साहब, अगर आलू बुखारे की चटनी ना बनी शादी पे तो मैं फारस की बारात के साथ नहीं आऊंगा। शुक्र है ना आइएगा जी, ना आइएगा। शुक्र है आलू बुखारे की चटनी भी बच गई और बारात की डेकोरेशन भी बच गई। ये देखिए मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपकी बेटी भी बेजा जिद कर रही है और इनका बेटा भी, और यही जो जिद और फरमाइशें हैं ना, ये अच्छे भले जो दो खानदानों का एक खूबसूरत बंधन बंधने जा रहा होता है ना, उसका सत्यानाश कर देते हैं दोनों तरफ से। मेरा ख्याल है कि बहुत वसअत ज़र्फ़ी की ज़रूरत होती है, और अगर ये वसअत ज़र्फ़ी ना नज़र आए ना तो आने वाले वक्तों में सिर्फ बर्बादी आपका इंतज़ार कर रही होती है। हाँ। ਭਾਜੀ ਮਾੜੇ 50,000 ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। 50,000 ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ? ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਲੋ ਜੀ, ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਠ ਅਸ਼ਰਫ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओ भाई केड़ा सेठ अशरफ, सीधी तरह अपनी बरादरी वालों को बताओ, कुड़ी का बाप जो है वो बाकरखानी का कारीगर है और वो भी एक मुकामी बेकरी है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी या बुजुर्ग होते थे ख़ास तौर पे, वो अपने पूरे मोहल्ले में या इलाके में बच्चों को मुफ्त अपने घर में बुला के पढ़ाया करते थे। जी बिल्कुल। हजूरे वाला, जहाँ पे हमारा माशरा और बहुत से अपने औसाफ से तेज़ी के साथ महरूम होता जा रहा है, जिनको हम अपनी पुरानी कदरें कहते हैं या हमारे रस्म व रिवाज का, हमारे कल्चर का हिस्सा हुआ करती थी जो बातें, बाज़ बातें गलत भी थीं, ज़ाहिर है उन गलत बातों से जान छुड़ाना भी हमारा फ़र्ज़ था, लेकिन बहुत सारी जो खूबसूरत बातें हैं ना, उनसे भी हमने दामन छुड़ा लिया है। वो बहुत अफसोस की बात है। उनमें मैं एक बात नोट कर रहा था कि गए वक्तों में मोहल्ले में बच्चियां, बच्चे या पढ़े लिखे जो कुछ थोड़े बहुत भी पढ़ी लिखी लड़कियां होती थी या बुज़ुर्ग होते थे ख़ास तौर पे, वो अपने पूरे मोहल्ले में या इलाके में बच्चों को मुफ्त अपने घर में बुला के पढ़ाया करते थे। जी बिल्कुल। अब ये रिवाज कमो बेश ख़त्म होके रह गया। ये इतनी खूबसूरत आदत थी, इतनी खूबसूरत बात थी कि वो जो इब्तदाई तालीम होती थी वो अक्सर व बेशतर बच्चों की, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे माली हालात की वजह से, वो वहाँ पे जाया करते थे, फिर उनमें शौक़ बढ़ जाता था। अगर वहाँ पे कोई 10 बच्चे आते थे तो 3 या 4 बच्चे ऐसे ज़रूर निकल आते थे जो बाद में ये ख़ुद फैसला करते थे कि अब हमने अगला मरहला जो है वो स्कूल में जाके तय करना है और फिर कॉलेज जाना है, फिर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी जाना है और ये तालीम के सारे मरहले तय करने हैं। और बहुत सारे लोग कर लेते थे, लेकिन उनका इब्तदा में हाथ कौन थामता था? वही वो जो मोहल्ले में बाजी होती थी, ठीक है, जिन्होंने खुद या बाबा जी होते थे या भाईजान होते थे, वो काम से वापस आके कोई 1-1.5 घंटे के लिए मोहल्ले के बच्चों को बुला के वो पढ़ा दिया करते थे। अब ये बात मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। खाल खाल भी क्या कहना, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो उसके में बहुत एक बड़ी वजह जो है ज़ाहिर है वो मटेरियलिज़म भी आ गया हुआ है, कमर्शलिज़म आ गया हुआ है। अगर कोई ये काम करता भी है तो वो पैसे लेके करता है, वो ट्यूशन पढ़ाता है। चले ट्यूशन पढ़ाना भी बुरी बात नहीं, बज़ाहिर है उसके भी उसका रोज़गार लग जाता है, लेकिन अगर इस तरह कितने बच्चे होंगे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सही, जो महीने का मतलब 100, 150, 200 रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, इसलिए वो नहीं पढ़ने आते। हाँ जी, मोहल्ले में यार यहाँ तक होता था कि मोहल्ले में सदर सेक्रेटरी बन जाते थे। हाँ, अक्सर गली मोहल्लों में ना जी एक सदर, ये मोहल्ले का सदर है जी, ये मोहल्ले का सेक्रेटरी है, और वो सिर्फ सदर और सेक्रेटरी नाम के नहीं थे होते, वो इस तरह की चीज़ें देखते भी थे। किसी की कोई तालीम का मसला है,
किसी का कोई अल्लाह माफ़ करे घर में कोई झगड़े का मसला है, कोई भी, वो बाकायदा घर के फर्द की तरह इन्वॉल्व होते थे। सेंस ऑफ कम्युनिटी होती थी। हाँ जी, हाँ जी, वो ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल सही तुम कह रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको याद करके बड़ा दुख होता है कि यार वो रवायात किधर गई हमारी। वो बाकायदा वो चीज़ें जो थी वो बड़ी सपोर्ट कर देती थी एक दूसरे को ज़िंदगी गुजारने में, तरक्की करने में। अब देखो ना, ये कैसी खूबसूरत बात ये आपने याद कराई है कि वाकई मोहल्ले के जो लोग होते थे वो बाकायदा पढ़ाते थे दूसरों को, जो तालीम याफ्ता होते थे वो धक्के नाल आप कह के वो आ जाया करो मेरे को, कैसे मजमून जा रहे हैं, ये है वो है। मोहल्ले के बच्चों को आवाजें दे दे के बड़े बुला देते थे और पढ़ाते थे बिल्कुल। और खवातीन भी ऐसी बहुत सी खवातीन होती थी जो मोहल्ले में जो सपारा पढ़ा देती थी, सपारा पढ़ा देते थे, दीनी तालीम, हाँ दुनियावी स्कूल की तालीम दे देती थी मदरसों की, और वो ख़त्म हो गया, रवाज ही ख़त्म हो गया। और ये आप देखिए ज़्यादातर ये काम किया करते थे जो घर में रिटायर्ड बुजुर्ग हुआ करते थे ना, जो पहले सरकारी मुलाजिम, और ख़ास तौर पे जो हेडमास्टर या स्कूल टीचर होते थे ना, वो पैसे लेके ये काम नहीं करते थे, वो बाकायदा इसको सदका जारिया समझ के करते थे कि मैंने अपने पूरे इलाके में, बल्कि बात तो इस हद तक जाते थे कि वो खाना भी खिलाते थे घर में बच्चों को बुला के। आप यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं कि वो गरीब बच्चों को इकट्ठा करके, कोई 10-12 बच्चे आते थे, उनके लिए कोई खाने पीने का इंतजाम कर देते थे, कोई टॉफियां गोलियां उनको ले देते थे, उनको इंसेंटिव देते थे। हैं जी, आप भी कहते? जी मैंने आपको भी कोई टॉफियां गोलियां दे के पढ़ाता जी मैं पढ़ता रहा हूँ और सुबह सुबह टॉफियों गोलियों पे। सर वो मट्टी में शक्कर, एक सेकंड यार, बात हो रही है। हाँ बात हो रही है, बात बड़ी जरूरी हो रही है, बताएं जी क्या बात हो रही है। जब मैं पढ़ने जाता था सुबह सुबह तो वो मुझे नाश्ता भी करवा देते थे। अच्छा, तो फिर ये पढ़ता ही रहता था, और इतना पढ़ता था कि दूसरा बंदा जो पढ़ाने वाला होता था वो हाथ जोड़ देता था, और तेरी पढ़ाई नहीं मुकनी, और बस कर यार, बल्कि कहते थे कल पुत्र ना ही ऐसे किधर और काम जाना है। सर वो पढ़ाई 1-2 पे नहीं, इनकी रोटियों पे गिनते थे, लो पंजी खा गया जे, चबी खा गया जे। सर जी मैंने तो ऐसे बंदे भी देखे हैं कि जिनके यानी कि तालिब इल्मों के पास कुछ नहीं है, उनके वो वजीफे भी लगवाते थे, फिर उनको स्कूल में दाखिले के लिए भी वो खुद अपने पल्ले से अरेंज करते। हाँ दाखिला फीस अपनी जेब से देते थे। लेकिन ना वो उनको बाकायदा अपनी कम्युनिटी से इतना प्यार होता था कि वो यानी तालीमी अखराजात जो बात के थे, किताबें लेके देना, वो सारे बुजुर्ग किया करते थे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ भी देखें ना कि ये दो तरफा ट्रैफिक होती थी। जिन बच्चों को वो बुजुर्ग या मोहल्ले में जिनको हम बाजियां कहा करते थे, जिनसे हम कुरान पाक पढ़ते थे या कोई ये दुनियावी तालीम भी हासिल करते थे स्कूल की, तो सारी जिंदगी हम उनके एहसानमंद रहते थे। सही। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बड़ी बड़ी तरक्की की मनाजिल तय कर गए हैं, लेकिन वो अपने असातिज़ा को जिन्होंने घर बुला के उनको पढ़ाया होता था, कोई मजमून एक आध पढ़ाया होता था, अंग्रेज़ी पढ़ाई होती थी, हिसाब पढ़ाया होता था, कुरान पाक पढ़ाया होता था, वो बिल्कुल अपने बुजुर्गों की तरह उनकी इज्जत करते थे। तो सारी जिंदगी उनका एहसान अजीम वो याद रखते थे। हाँ जी, उनको आते हुए देख के छुप जाया करते थे कि वो आ गए हैं। हाँ बल्कि गोगी को देख के तो इसलिए भी बच्चे छुप जाते थे कि वो आ गया, कोई पाँव के नीचे ना आ जाए। अच्छा, अब चूंकि हालात बदल गए हैं, मुझे पिछले दिनों फैसलाबाद से 2 नौजवानों ने रब्ता किया कि जी हमने अपने तय ये काम शुरू किया है, तो आप अपने शो में इसका जिक्र करें। उन्होंने कहा जी कि हम शाम को बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन के बाद हम अपनी महफिल जमाते हैं। और कहते हैं कि हम उस महफिल में दुनिया जहान की बातें करते हैं, सियासत की बातें करते हैं, इधर उधर की गप्पे हाँकते हैं, और 2-2 3-3 घंटे गुजर जाते हैं। कहते हैं हम में से एक हमारे दोस्त ने मशवरा दिया कि यार ये हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, क्यों ना हम इर्द गिर्द सारे, और वो कहने लगा हम सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई MBA है, कोई लेक्चरर है। उन्होंने कहा जी हम सब ने फैसला किया कि हम सब्जेक्ट्स बांट लेते हैं और मैट्रिक से लेकर BA या BSc तक हम तमाम स्टूडेंट्स को फ्री ट्यूशन देते हैं। वाह। और उन्होंने कहा कि हमने 11 या 12 स्टूडेंट्स के साथ ये काम किया था, आज हम 70 से 80 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अब मुफ्त पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि हम, मैंने कहा मिलता आपको क्या है? कहने लगा दुआएं। कहते दुआएं मिलती हैं और क्या मिलता है। अब वही वक्त जो गप्पों में सर्फ होता था वो अब कौम साजी
में सर्फ हो रहा है और कितना उसका अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया है। सर जी ये वाले लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ सादा पढ़ाते ही हैं या कोई खाना शाना भी साथ देते हैं? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा है कि वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं और फैसलाबाद में पैदा होने वाला हर बच्चा पैदा होने के बाद जो पहली जिंदगी की हकीकत जानता है ना, वो तुम्हारी भूख जानता है। तो उसको नहीं पता, वो तुम्हें ये ऑफर करेंगे कि आओ तुम्हें पढ़ाएं और तुम रोटी खा लो। फैसलाबाद वाले बड़ा लंगर बांटते हैं सर जी। भाई यही पता है ना, वही बात ना, लंगर बांटते हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के लिए पेरेंट्स दोस्त ढूंढ रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं कि फीस थोड़ी कर दें। ओ भाई तुम्हारे पास अगर फीस थोड़ी है तो तुम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? नाज़रीन आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप इज्जत देते हैं, आप तारीफ ही इतना अच्छा करा देते हैं। अगर आपकी माशरे ने इज्जत नहीं करनी तो किसकी करनी है सर? ये आप जैसे बाशऊर लोग जो है बदनसीब होते हैं वो माशरे जो उस्ताद की इज्जत नहीं करते सर। हमने रोशन किया है इस मुल्क को, रोशन किया है तालीम के जरिए। खुद रोशन नहीं हुए लेकिन पूरे माशरे को रोशन किया खुद की है। हमने ये इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी सर? हमने रोशनी ही नहीं दी, खून भी दिया है। 3 दफा गिरा हूं मैं स्कूल की छत से। ऐसा बात ये है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के मसाइल मेरा ख्याल है कि आम आदमी को मालूम ही नहीं। अब देखिए हमें कहा जाता है कि एनरोलमेंट जो है उसको बढ़ाया जाए। जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं जो बच्चों के, वो सरकारी स्कूल में बच्चे को दाखिल कराना तौहीन समझते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। आप ये गरीब समझते हैं। दाखिल ही गरीब और बेचारे मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। वो गरीब दौलत से नहीं होता, दिल से होता है, दिल से। हाँ ये भी बड़ी बात। जुनैद साहब शर्म आती है ये देख के, ये सोच के कि क्या हो गया है मुआशरे को, किस भेड़ चाल में ये लगे हुए हैं। आप देखें जुनैद साहब, अक्सर आपने सुना होगा कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के लिए पेरेंट्स दोस्त ढूंढ रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं कि फीस थोड़ी कर दें। ओ भाई तुम्हारे पास अगर फीस थोड़ी है तो तुम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? बिल्कुल सही। हुकूमत पाकिस्तान आपको अगर एक चांस देती है, एक सहूलत देती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारे सरकारी इदारों में हम फीस नहीं लेंगे, आप मिन्नतें करते फिरते हैं प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के मालकान की कि हमारी फीस आधी कर दी जाए। और जुनैद साहब सारी जिंदगी आप देखें माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी है, तालीम से वाबस्ता रहे हैं और अब भी है। आप देखिए कितनी कितनी बड़ी शख्सियत इन सरकारी इदारों से पढ़ के बनी। ये आपके सामने जो चमकते सितारे बैठे, ये भी तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ के कहाँ गए अपनी सर? बात में एक आध लफ्ज तुम ऐसा जरूर डाल लेते हो कि सारा वजन ही खराब हो जाता है। क्या जरूरत है चमकते सितारे कहने की? बस सितारे कह के निकल जाओ, जरूर ध्यान पड़वाने। और जुनैद साहब देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं दोस्त अहबाब की और बच्चों की कि वालिदैन से कहें हमने सरकारी स्कूल में दाखिल होना है। मजीद साहब ऐसे यकीन करें मैं आपके जज्बे की बहुत कदर करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप कुछ भी कह रहे हो ना, इतनी प्यारी आवाज है, लगता है आप गा रहे हैं मैं डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। वो मासूमियत है आवाज में, लगता है कि बारिश मांग रहे हैं। आपने ठीक फरमाया। मजीद साहब की आवाज ऐसे ही है जैसे लास्ट टाइम अल्लाह माफ करे बंदा वसीयत करता ना कि लो भाई वो बड़ी दुकान तुम्हारी है और ये जो छोटी है ये छोटे की है। अभी आखिरी बच्चे को वसीयत करनी होती है भी तेरे नाम क्या लगाना है और फौत हो जाता है। नहीं, फौत नहीं होता। वसीयत लिखवा के सारे खानदान को रुला के अगले दिन ही ठीक हो जाता है। जुगत वैसे पक्की थी थोड़ी सी, है जी? जुगत तो पक्की थी मगर दाखला नहीं ना पूरा हो रहा। जो डायरेक्टर है, जो अब ऊपर सेक्रेटरी साहिबान बैठे होते हैं,
वो कहते हैं जी इनरोलमेंट जो है वो बढ़ाएं। देखें जुनैद साहब, मैं ये कहता हूं कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि सरकारी स्कूल अब भी इस दौर में भी सरकारी स्कूल कॉलेजेस फिर भी अच्छी बिल्डिंगों में और बड़ी बड़ी जगहों में है, और बच्चे को ये प्राइवेट दड़बों में बंद करके उनको उनके बेचारों की शख्सियत मजरू कर रहे हैं। सिर्फ अंग्रेजी बोल लेने वाले बंदे की शख्सियत नहीं होती। मजीद साहब, उसके लिए बहरहाल हमें अपने सरकारी स्कूलों का मयार भी तो बुलंद करना होगा, और उसमें बुनियादी किरदार जो है वो आप लोगों का है। आप रिफ्रेशिंग कोर्सेज जो है उनसे डरते हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा कोई स्टैंडर्डाइज किया जाए कोई सिस्टम को, उससे आप खाइफ हो जाते हैं। आपकी भी तो ज्यादा। देखें जुनैद साहब, मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो कहूं जी कि नहीं हम सच्चे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गलतियां हमारी भी हैं, और हम लोग भी अपने मायार को, अपने स्टैंडर्ड को और अपनी तालीम को नई राहों पे नहीं डाल रहे। जिद्दत आ चुकी है, आप बजा फरमा रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम भी जिद्दत अपनाएं। हम लोग भी अपने स्कूल कॉलेजेस को जदीद करने की कोशिश करें। ये सबसे पहले आप लोगों को आवाज बुलंद, बेशक यही वाली आवाज ही हो, इसको बुलंद करना पड़ा। जी, हम भी इसीलिए मजीद साहब के पीछे हैं। इनको हमने अपना लीडर माना है, लीडर माना हुआ है कि ये जो आवाज है मजीद साहब की, ये चेंज लाएगी। हाँ, इसी आवाज से तब्दीली आएगी। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह तालीम के महकमे में तब्दीली आएगी। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। हाय हाय, वैसे पहले एक चिराग जला है, उससे तो कोई रोशनी नहीं हुई। जुनैद साहब, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। असल बात ये है ना, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। मजीद साहब, आपकी आवाज में मुझे हमेशा एक उम्मीद नजर आई है। माशाल्लाह, नहीं आपकी भी माशाल्लाह मेहदी हसन से मिलती है। आप गाहे गाहे गाते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। माशाल्लाह, बाकायदा कूड़ है आप। नहीं, वाकई आपकी आवाज में मुझे वाकई उम्मीद नजर आती है। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। देखिए जुनैद साहब, बात ये है कि जब तक आप कौम और मिल्लत के बारे में नहीं सोचेंगे, कामयाबी नहीं हो सकती। बुरा हुआ ही उस वक्त है जब हर आदमी ने अपनी बेहतरी सोची। जब आप जुनैद साहब, आप जब सेल्फिश हो जाते हैं तो फिर कौमें नहीं बनती, फिर आप हजूम बनते हैं। जी हाँ, बड़ी फिर प्यारी बात। हजूम बनते हैं। फिर हर आदमी जो है वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप हर महकमे की तरफ तवज्जो दें और उसमें हिस्सा डालें अपना। दुकान खोलने से याद है, आपने सर अपने मोहल्ले में नुक्कर पे गांव में दुकान खोली थी, वो बंद कर दी, चल रही है। जुनैद साहब, ये बस बेवकूफी की ना रमजान साहब ने, मोटी जलेबी बनानी शुरू कर दी। अब ये जो मोटी जलेबी होती है ना जी, ये उधर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तो बिक जाती है। अच्छा। यहाँ पे तो क्रिस्पी जलेबी चलती है, जितनी बारीक हो उतनी ज्यादा बिकती है। मोटी जलेबी में खर्चा ज्यादा आ जाता ना, उसमें शीरा ज्यादा चला जाता है। बड़ा पता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। माशाल्लाह, सूट तो आज आपने ढोल बजाने वाला पहना हुआ है। नाज़रीन, यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हर तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, हर तरक्की याफ्ता मुआशरे के अंदर ख़वातीन भरपूर तरीके से हिस्सा लेती हैं तो फिर तरक्की होती है। अच्छा जी, ये जो हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन का काम करना जो है जी, वो अल्लाह के फजल से उसकी रेशो बढ़ती जा रही हाँ है, जी, बिल्कुल और ये बड़ी ही खुश आइंद बात है। अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ अब जो जिम्मेदारी है ना, जी, वो मर्दों की भी बढ़ती जा रही है। मर्द हजरात अभी तक अपनी नजरों को, अपने जहन को दुरुस्त नहीं कर पाए। हाँ जी, काफी हद तक जो बच्चियां हैं वो अब निकलती हैं काम के लिए, जॉब करती हैं, दिलेरी के साथ निकलती हैं, जी, मगर काफी हद तक अभी जो है ना, और
डाइजेस्ट करना है, एक्सेप्ट करना है मर्दों मर्दों को, उन बच्चियों के लिए, उन खवातीन के लिए अपने जहन को ये तैयार करना है बिल्कुल। कि ये काम कर रही हैं, ये मुआशरे की बेहतरी के लिए, हाँ। अपने घर की बेहतरी के लिए, हाँ। अपने वतन की बेहतरी के लिए काम करने निकली हैं। ये को बाहर तमाशे के लिए नहीं निकली। बिल्कुल अभी तक हम तमाशा समझते हैं। बिल्कुल वो महसूस उस वक्त होता है कि जब कोई हमारी बेटी, बच्ची, बहन अपनी स्कूटी के ऊपर बैठ के निकलती है ना जी, हाय तो हम देखते हैं कि इशारे के ऊपर या किसी ट्रैफिक के रश के अंदर उस बच्ची को अभी तक उसी नजरों से देखा जाता है जैसे कोई तमाशा लगा हुआ है। बिल्कुल तो वो बच्चियां भी बेचारी कंफ्यूज हो रही होती हैं। हाँ वो ट्रैफिक के अंदर या सिग्नल पे खड़े होते हुए कंफ्यूज हो रही हाँ होती जी, हैं कि घबरा मुझे जाती सारे हैं, हाँ। देख रहे हैं। उस बच्ची को ये कॉन्फिडेंस देना है कि पुत्र, बेटा, बेटी, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अगर कोई देख रहा है तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, हाँ। तुम्हें शाबाश देने वाली नजरों से देख रहे देख क्या हाँ जी हैं। ये उसे इत्मीनान अभी देना है। देना है, बिल्कुल क्योंकि पूरी दुनिया में हम अब ये बहुत दफ़ा बहस भी कर चुके हैं, कह भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, और ज़्यादातर लोग अब जानते भी हैं जब से ये सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, तो लोगों को काफ़ी हद तक ये पता चल गया है कि भाई हर तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, हर तरक्की याफ्ता मुआशरे के अंदर ख़वातीन भरपूर तरीके से हिस्सा लेती हैं तो फिर तरक्की होती है। बिल्कुल तो इसलिए यहाँ पे भी और इस्लाम में भी, हमारे मुआशरे में, हमारे मज़हब में बिल्कुल ममनू नहीं है। हाँ, वो हमारी ज़हनी पस्ती थी जिसको हमने ठीक करना है, वरना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी औरतों ने हिस्सा लिया है, जो जंगें हुई हैं उसमें कारोबार किए हैं, कारोबार नर्सिंग की की है, हजरत सारे खदीजा फराइज सर अंजाम रज़ी दिए। अल्लाह ताला अन्हा तजारत करती थी, माँ जी, माशाल्लाह अम्मा जी तजारत करती थी। जज़ाक। तो इसलिए ये ख़वातीन को कॉन्फिडेंस देना है कि बेटा कोई बात नहीं, निकलो, बिल्कुल काम करो, अपने घर को संवारो, अपने घर की मुआशी हालत दुरुस्त करो, अपने खामंद का, अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का साथ दो। तो अभी देखो ना, कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं अभी तक कर रहे, जी बिल्कुल, डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे। चलो डॉक्टरी में भी माशाल्लाह बच्चियां भरपूर हिस्सा लेती हैं, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां आ रही हैं। फिर अपना एजुकेशन के महकमे में भी काफ़ी मुतमईन हैं औरतें भी, और हम लोग भी एक्सेप्ट कर गए हुए हैं, डाइजेस्ट कर गए हुए हैं, और वो हो रहा है। बिल्कुल पुलिस में, इवन पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी में बच्चियां आनी शुरू हो गई हैं, और बेबाब हर दूसरे तीसरे दफ्तर में देखें आगे अफसर बच्ची बैठी होती है। और लेके ध्यान पुलिस की जो ऑफिसर्स हैं बच्चियां वर्दी पहन के माशाल्लाह ऐसे कॉन्फिडेंस से वो अपने काम को चला रही हैं, और मर्दों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। पुलिस में जो औरतें हैं उनके हाथों में वही ताकत है, बेशक उनके नेल पॉलिश लगी होती है लेकिन जब वो बालों से पकड़ दिए ना मुलजिम को तो ताकत वही होती है। एक ट्रेनिंग है ना जी उनकी, जाहिर है उन्होंने मुजरमों को और बुरे लोगों को हैंडल करना है। जाहिर है थाने में कोई दवाई लेने तो जाता नहीं। सही से औरतों को वर्क प्लेस पे या जहाँ कहीं भी तालीमी इदारों में कहीं पे रिस्पेक्ट देते हुए ना, हमने बाज़ जो नॉर्म्स बना ली हुई हैं, बाज़ जो सिंबलिज्म इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी बड़े अजीबो गरीब हैं। मसलन कि हमने ये सोच लिया है, एक तो आदतन कोई कहता है ना बेटा या बहन कहता है, लेकिन हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि बेटा या बहन अगर नहीं कहा जाएगा औरत को तो औरत की शायद इज्जत नहीं होगी। भाई औरत एक इंसान है, जब आप किसी मर्द को भाई जरूरी नहीं है कि भाई कहो या बेटा कहो, इसी तरह एक औरत के लिए भी जरूरी नहीं है कि आप उसको बहन कहोगे ही तो इज्जत करोगे, आप उसको माँ कहोगे तो इज्जत करोगे। भाई वो एक इंसान है, जीती जागती इंसान है, उसकी इंसान की तरह इज्जत करो, उसकी एक कुलीग की तरह इज्जत करो। इज्जत यहाँ पे होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, कई लोग कहते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं कहते और दोनों तरफ से ये दो तरफा ट्रैफिक है, इस बात का इदराक करना चाहिए कि दो इंसान आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह इंटरेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है वो भी बात आपकी, मगर इस वक्त जो मुआशरा है ना जी हमारा, अभी जिस पस्ती में से निकल रहा है और जिस घुटे हुए जहनीत से निकल रहा है बाहर, यहाँ पे इस वक्त ज़रूरत वाकई है। आप बच्ची को कॉन्फिडेंस दे देते हैं ना। मैं मसलन अक्सर कोई करीब आए कोई बच्चा या कोई फैमिली का खातून आए तो मैं लाजमन इस तरह की बहन बेटी कोई लफ्ज़ कह देता हूँ कि चलो ये कॉन्फिडेंस से ईजी होके मिले, नो प्रॉब्लम।
تو واقعی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر نام لے کے ایک دوسرے کو بلا کے کام کر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں دھڑا دھڑ، اور وہ بڑا اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ یہ جہالت کی نشانی ہے۔ جو لوگ عورت کو، باہر نکلنے والی خاتون کو تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ نوٹ کریں تو سارے جاہل ہوتے ہیں، جائے خاص نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، ان کو ابھی تک یہ ڈائجسٹ ہی نہیں ہو رہا، ہائے۔ یہ باہر نکلتی ہے کام کے لیے بچی، بے شک۔ بالکل ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ ہاں جی۔ تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ بار بار یہ بات کرنی بھی چاہیے، اور اپنے حلقوں میں بھی یہ بات کرتے رہنا چاہیے، اپنے خاندان میں بزرگوں کو بھی اب یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی بچی اگر کام کرنا چاہتی ہے تو بالکل اسے کرنے دو، اور اس کا ساتھ دو، اسے انکریج کرو۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا اس پہ حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ پوچھا گیا علم کیا ہے، جواب ملا عبرت بننے سے پہلے عبرت پکڑنے کا فن۔ واہ! ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔